ان پہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں نہتوں کے اوپر اور ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس میں میں اپنی فورسز کو، لا انفورسمنٹ جتنی بھی ہماری فورسز ایف سی ہو، فوج ہو، پاکستان ریلوے ہو، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہ خراج تحسین میں اکیلا پیش نہیں کر رہا، پوری پاکستانی قوم پیش کر رہی ہے، اور دنیا نے اکنالج کیا ہے کہ جو رسپانس ٹائم تھا وہ زیادہ تھا، کم تھا، اس میں کیا خرابیاں تھیں، اس کو چھوڑتے ہوئے جب وہ پہنچتے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پہ سوئسائڈر کو انہوں نے قابو کیا، اس دوران ایک بھی کیجویلٹی نہیں ہوتی، ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوتی، ایک بھی شہادت نہیں ہوتی۔ یہ اب دنیا اسٹڈی کرے گی کہ یہ پروفیشنلزم کی ایک انتہا تھی، معراج تھی۔ اور میں اپنے ان کمانڈوز کو، اپنے ان فوجی جوانوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کم سے کم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26-27 کی فگر بھی جو ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک جان کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کی قیمت کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے انٹلیکچوئلز، سو کالڈ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں نا جی کہ فلاں جو ہے وہ اپنے پلاٹس کی خاطر، پیسوں کی خاطر وہ اپنی جان دیتے ہیں، تو کیا میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، آپ کے میڈیا کے ذریعے بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنی مرضی کا اس کو پلاٹ دوں گا، لاہور میں ڈی ایچ اے میں لینا چاہے، وہ پنڈی کے ڈی ایچ اے میں لینا چاہے، کسی جگہ لینا چاہے، وہ اپنا وہ بچہ مجھے دے دیں شہادت کے لیے، جو جب سب سے خوبصورت بھی ہو اور فزیکلی سب سے زیادہ فٹ بھی ہو۔ کوئی نہیں دے گا، کوئی اربوں میں نہیں دے گا، کوئی خربوں میں نہیں دے گا۔ تو اس لیے جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ہمارے وہ کمانڈرز جسے زرار کمپنی کے کمانڈرز کہتے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کی جانیں بچائیں اور اس چیز کی پرواہ کیے بغیر، اور کم سے کم انہوں نے سمجھا۔ میں خود اور ہمارے بہت سارے لوگ جب رات گئے تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، تو ہمارے ذہنوں میں تھا کہ اگر 2 بھی پھٹ جاتے ہیں، 3 بھی پھٹ جاتے ہیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، اس کی ذات کے کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ جو اس دہشت گردی میں ملوث تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں، بہت سارے ماسٹر مائنڈ رہتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا، اب ہم سے فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کی کہ میں انڈر دا کارپیٹ بات کروں۔ نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں بھی فیصلہ ہوا ہے اور حکومتی سطح کے اوپر بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو بھی دہشت گرد ہوگا، جہاں جہاں ہوگا وہاں اس کا پیچھا کیا جائے گا، اور اگر وہ یہاں سے نکل کے کسی جگہ اور جاتا ہے، ہماری ملک سے باہر چلا جاتا ہے، تو وہاں بھی اس کو جا کے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ پاکستانی فوج ہے جس نے پہلے بھی ایسے بہت ساری جو دہشت گردی کی جنگیں ہیں وہ لڑی ہیں، آج سے نہیں لڑ رہے، پچھلے 30 سال سے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا، اور ہماری یکجہتی بھی قائم اور دائم رہے گی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ راول پنڈی میں کسی بلوچ کو قتل کیا گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پنجاب کے کسی حصے میں کسی بلوچ کو مارا گیا ہو، کسی سندھی کو مارا گیا ہو، کسی پختون کو مارا گیا ہو؟ لڑائی جھگڑے آپس میں ہوئے ہوں گے، میں نہیں کہتا، اس کی میں گارنٹی نہیں کرتا، لیکن صوبائیت کی بنیاد کے اوپر، لسانیت کی بنیاد کے اوپر تو یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بھی سارا بلوچ جو ہے وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، سارا بلوچ جو ہے وہ سندھی کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی سیٹلر کے خلاف نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ یہ پسماندگی کا رونا روئیں یا جو مرضی کریں اس بنیاد کے اوپر یہ، لیکن دشمن کو کامیابی حاصل اس لیے نہیں ہوئی کہ 50% بلوچ آپ کا جو ہے وہ سندھ میں اور پنجاب میں ہے۔ 50% بلوچ، 40% وہ ہے سندھ کے اندر، 10% ہے وہ پنجاب کے اندر، باقی 50% ہے وہ بلوچستان کے اندر۔ لیکن آپ نے کبھی سندھ میں اور پنجاب کے اندر کبھی یہ لڑائی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ دشمن کے جو عزائم ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جعفر ایکسپریس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر سیکورٹی فورسز نے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ پاکستان ریلوے پورے ہمارے پاکستان کو جوڑتا ہے، یہ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ کو
प्रॉफिट नहीं हो रहा तो किसी के हाथ में बेच दिया जाए, ये वो वाला एसेट नहीं है। ये वो एसेट है जो हमारे दिलों को भी जोड़ता है, हमारी सरहदों को भी जोड़ता है और हमारे लिए यकजहती का एक पैगाम भी है। और इनकी ट्रेन के नाम भी ऐसे हैं, किसी जगह जाफर एक्सप्रेस, कहीं बोलान एक्सप्रेस है, कहीं बहुत मतलब कि आप देखते जाएं हर जगह, कहीं खुशहाल खान खटक अपने है, कहीं अपना मूसा पाक का नाम है, बहाउद्दीन जिक्रिया का नाम है। तो ये बहुत सारे पाकिस्तान की एक खूबसूरत गुलदस्ता पेश करता है। ये जो है ये ऑपरेशन सस्पेंड था। उस वाक़े के बाद मैं अपने रेलवे के तमाम, खासतौर पे डीएस रेलवे की सारी टीम को भी, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये हमारा डिपार्टमेंट है, बल्कि आप भी इसको एक्नॉलेज करेंगे कि जिस जगह ये वाक़या हुआ वहां तो 24, 26, 27 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं जाती, रोड का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर इसी पटरी को इस्तेमाल किया गया रेस्क्यू के लिए। हमारे लोगों ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और वहां से अपने लोगों को निकाला। उस जो वहां से निकल के आए थे, पहुंच गए थे किसी स्टेशन में, वहां से निकाला, फिर उस जगह के ऊपर जाए लेके गए और वहां से रेस्क्यू किया लोगों को। सिक्योरिटी पर्सनल्स जो थे वो उस पे बैठ के वहां तक गए, वहां से वापस आए और उसके बाद अपने ट्रैक को चंद दिनों में हमने ठीक कर लिया। मतलब मैं समझता हूं कि 2 से 3 दिनों में हम 2 दिन के अंदर हम दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। ये पूरी रेलवे के जितनी हमारे लोग जिन्होंने उसमें अपना किरदार अदा किया है वो भी खराज तहसीन के काबिल है और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं पूरी कौम की तरफ से। अब हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अंदर उस ऑपरेशन को उससे बढ़कर जो पहले शुरू था यहां पे, यानी यहां पे हम 3 ट्रेनें चलाते थे इस ऑपरेशन से पहले, यही है जी। अब अल्लाह के फजल व करम से हम अगर बुलान ट्रेन जो है वो हफ्ते में 2 दफा चलती थी, अब इंशाअल्लाह ताला 7 दिन जो है वो बुलान ट्रेन जो है वो हम चलाएंगे। यानी हम दुश्मन की उस कोशिश को हमने नाकाम कर दिया कि हम मायूसी की तरफ चले जाएं, हम पशेमानी की तरफ चले जाएं, हम बैकफुट पे चले जाएं। हम बैकफुट पे नहीं हुए, बल्कि हमने ये पैगाम दे दिया है कि इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी ट्रेनें 3 चलती थी तो आप अगर 6 और उसमें शामिल होंगे तो 9 चलेंगी यानी। और इसके अलावा आज मैंने जो बात की है डीएस साहब से, सीओ साहब से, हमारे चेयरमैन साहब हैं, आईजी साहब हैं, हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारे जो स्टेशंस हैं वो वनरेबल हैं, वहां पे मतलब कि फेंस नहीं है, वहां पे स्कैनर नहीं है, वहां पे मेटल डिटेक्टर नहीं है, हमारे पास फोर्स उतनी नहीं है रेलवे पुलिस के पास। हम इंशाल्लाह आईजी साहब ने चार्ज संभाले थोड़ा अरसा हुआ है, 500 के करीब इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट हो रही है। पहले फेज है, उस फेज के अंदर इंशाल्लाह 70% जो रिक्रूटमेंट होगी वो हम जो अपॉइंट करेंगे, उनकी तैनाती करेंगे, वो हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर करेंगे और बाकी हम बाकी शहरों के अंदर। उसके बाद सेकंड फेज में हम 1000 के करीब मजीद करेंगे और इसके लिए जो पिकटों की जरूरत होगी वो एफसी के साथ और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर हमने आज प्लान किया है और उस प्लानिंग के तहत हम इंशाअल्लाह ताला इनको चलाएंगे। पहली जो हमारी ट्रेन है कल पेशावर से जाफर एक्सप्रेस जो है वो कोयटा के लिए रवाना होगी। परसों इंशाअल्लाह यहां से हम फुल फ्लैग जाफर एक्सप्रेस को जो है पेशावर के लिए रवाना करेंगे और इसके लिए फिर बुलान वो एक्सप्रेस जो है वो भी हम इंशाअल्लाह यहाँ से चलाएंगे और वो 2 दिन की बजाय हम 7 दिन चलाएंगे। और सिक्योरिटी के इंतजामात हमने कर लिए हैं। ये वाक़यात कौमों की ज़िंदगी में आते हैं, बड़े बड़े वाक़यात आते हैं, पूरी दुनिया में आते हैं और कौमें वही हैं जो उसका मुकाबला करती हैं, खड़ी होती हैं इंशाअल्लाह। इसके अलावा हम 29 तारीख को हम वैसे टोटल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 5 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं ईद के लिए। पहले 2 चलती थी, 3 चलती थी, इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के अहकामात के मुताबिक हम 5 स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं और उसके साथ एक स्पेशल ट्रेन जो है वो उसमें 5 में से 29 तारीख को यहाँ से स्पेशल ट्रेन चलेगी ईद के लिए। इसके अलावा जो ईद के दिनों में
पहले दूसरे और तीसरे दिन के लिए हमने 20% डिस्काउंट जो है ये भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने के मुताबिक हमने इकॉनमी क्लास के लिए रखा है। और लेकिन इसके साथ साथ हमने टॉप प्रायोरिटी के ऊपर चेयरमैन साहब के साथ मिलकर सारे जो हमारे डिपार्टमेंट है रेलवे का, इनके साथ मिलके हम SC-PSD पे भी ऐसे प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं जो सेफ्टी के हवाले से भी होंगे और जो हमारे स्टेशंस को अपलिफ्ट करने के हवाले से भी, अपलिफ्टिंग के कार्गो की बात की है कि कार्गो के हवाले से हमारा जो पहले से जो फ्रेट ट्रेन चलती थी उनको हम रिस्टोर करें। अच्छा, फिर उसके अलावा जो 2003-04 में हमारी ट्रेन चला करती थी उसके लिए भी मैंने CO साहब से और चेयरमैन साहब से प्लान मांग लिया है ताकि हम बजाय ट्रेनों को कम करने के हम बलूचिस्तान की ट्रेनों में कम से कम वहां पे पहुंच जाएं जो 2003, 4, 5 में चलती थी, वो अब हम आने वाले वक्त में भी चलाना शुरू कर दें। इसके अलावा इनको मैंने बताया कि कुछ काम हम ठीक है बजट के जरिए होंगे लेकिन कुछ काम हम खुद कर सकते हैं। यानी हमने कहा कि ना ट्रेन जाने में लेट होगी ना आने में लेट होगी, ये प्रायोरिटी में शामिल है, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, किसी के साथ कंप्रोमाइज इस पर नहीं किया जाएगा। सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद पूरे पाकिस्तान में हम करवा रहे हैं। इंशाल्लाह वो कोयटा पे भी होगा। सफाई है, सफाई भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, सफाई में भी कोई इतना पैसे नहीं लगते या कोई ऐसी चीज नहीं है, जिन पे लगेंगे उस पर हम जोर नहीं लगाएंगे, वो हम इंशाल्लाह ताला खुद करेंगे। तो ये इकदाम रेलवे के हवाले से, बाकी क्या क्या इकदाम कर रहे हैं वो लंबी एक फहरिस्त है। हम अपनी प्रॉपर्टीज भी जो इंक्रोच है वो भी हमने कह दी है कि उनको भी हम जिस जिसके पास है, जिस डिपार्टमेंट के पास है, वो भी मैंने कहा है कि उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं, वो भी उनके साथ हम इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में है वो भी वापस लेंगे। अपनी जो प्राइम जगह हैं इसी तरह उनके ऊपर भी हम मल्टीपर्पज पूरी पाकिस्तान के अंदर कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर के अंदर जमीन हम बेच नहीं सकते, लेकिन जेवी के ऊपर इंशाल्लाह बड़ी बड़ी हम प्लानिंग करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे 14 स्कूल हैं जो हमारे रेलवे के एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ते हैं, वो तकरीबन उनकी तादाद है कुछ तकरीबन 4800। हम 4800 बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके। इसी तरह हमारे 8 बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइम जगहों पे हैं, कोयटा से लेके लाहौर, लाहौर से लेके कराची, हर जगह के ऊपर वो 8 के 8 हम अपने एम्प्लॉयज के लिए। अब वो नहीं है कि उसके पास किसी के पास इंजेक्शन नहीं किसी हॉस्पिटल में, किसी जगह इंडोर के लिए पेशेंट को दाखिल एडमिट करने के लिए आपके पास जगह नहीं है या साफ नहीं है, उनको भी हम प्राइवेट सेक्टर की मदद से इंशाल्लाह ताला हम वो फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज को देने जा रहे हैं जो अमीर तरीन लोग जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके लेते हैं। वो हम इंशाल्लाह, ये वो काम है जिसपे हमें कोई इतना वक्त नहीं लगेगा। ML1 कब बनेगी, 2 कब बनेगी, 3 कब बनेगी, उसकी प्लानिंग हम आपको 5 और 6 महीने के अंदर अंदर देंगे। लेकिन जो इस वक्त एग्जिस्ट करता हमारा कार्गो ट्रेन है कराची से चलने वाली, उसमें कार्गो का हमारा, अब मैंने एक मिसाल दी CO साहब को कि 3000 कंटेनर निकलता है कराची पोर्ट से और हम वहां से 200 उठाते हैं, बाकी सारे वो ट्रॉलों पे और ट्रक्स पे जाता है, तो वो हमारी ट्रेन पे क्यों ना आए, तो उससे हम कमाई क्यों ना। लेकिन जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है जिसको हमने प्राइवेटाइज भी किया है, उसने 2023 में 39 अरब कमाया, 2024 में 47 अरब कमाया, और अब हमारे आने के बाद और जो टारगेट हमने दिए है हमारी टीम CO साहब की निगरानी में और चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में, वो हमने दिया 55 अरब रुपए का। तो हम समझते हैं कि अगर हम पैसेंजर ट्रेन में इस तरह रेवेन्यू कमा रहे हैं तो दुनिया पूरी चलती है कार्गो के ऊपर, फ्रेट ट्रेन के ऊपर, और पैसेंजर ट्रेन को सब्सिडाइज करती है। तो यहां हालत हमारी ये है कि हम 4% उठाते हैं पूरे पाकिस्तान का कार्गो का। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बगैर ML1 बने, 2, 3 बने, हम इंशाल्लाह ताला उस पर भी इजाफा करेंगे। वो भी टारगेट हमने दे दिया है, उस टारगेट को भी हम 2-3 दिनों में पब्लिश करेंगे ताकि वो हमारी भी अकाउंटेबिलिटी होती रहे। ये मेरी आपके सामने और पूरी कौम के सामने चंद गुजारिशात थी, एक हमारी जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, एक पूरे रेलवे के सेटअप के हवाले से, उसको हम क्या क्या करने जा रहे हैं। इसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो मैं हाजिर हूं। इसके अलावा एक बात रह गई, फिर मैं जो हमारे कोयटा से ताल्लुक रखने वाले हमारे मैकेनिक थे ना जी पुलिस के, नहीं इधर वाले जो थे अभी, नहीं पुलिस का सिपाही वो उधर मानसेरा का था, इधर का था, इधर वो इधर का था, मैकेनिक जो था वो हमारा मानसेरा।
جو ہمارا پولیس کے اپنا جوان شہید ہوا ہے نا جی یہاں سے جس کا تعلق تھا، اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ آج ہم 52 لاکھ آج ان کے حوالے. یہ قیمت میں پھر بار بار کہتا ہوں، یہ پیسے جو ہے وہ قیمت نہیں ہے کسی کی جان کی، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ٹوکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فیملی کے لیے